Student, today we will read chapter number 10, that is respiration in organisms. All of you know very well that all living organisms need respiration. During the respiration, all the living organisms take oxygen gas and expel out carbon dioxide gas. During the respiration process, energy is created in our body, and that energy is needed for the various activity. All living things respire. Respiration is a process that includes breathing, movement of air in and out of the body, and vice versa is known as breathing. Respiration process include the breathing. Breathing, it is a movement of air in, हवा का अंदर जाना और बाहर निकलना, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स सच एज अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. द डिफरेंट एनिमल्स breathe by different ways. Some animals take oxygen gas through their skin, like earthworm. Fish use the gills for breathing, and plant exchange gases through tiny pores called stomata, which are present mainly on the surface of the leaves. This means that different living organisms has the different organ to take the oxygen and expel out the carbon dioxide gas. Human beings has the lungs. Human being take the oxygen gas through the nostrils, and that oxygen gas goes to the lungs. Aerobic and anaerobic respiration. So there are two type of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration means the respiration which are taking place in presence of oxygen is known as aerobic respiration, and respiration which is taking place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. All of you know very well that our food material has the stored energy, and during the respiration this stored energy is used by our body. How it is used, let we see. You know that during the process of breathing we take in air. ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान हम हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं. ऑक्सीजन इज टेकन इन while carbon dioxide gas is released out of the body during breathing. ब्रीदिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ी जाती है. ऑक्सीजन इज देन सर्कुलेटेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. ली हुई ऑक्सीजन पूरे सेल्स तक पहुंचती है, प्रत्येक सेल तक पहुंचती है. फूड means glucose is broken down in the cell with the help of oxygen. इसी ऑक्सीजन के द्वारा सेल में मौजूद फूड जो ग्लूकोज फॉर्म में होता है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है. The process in which food is broken down in the cell to release energy is known as cellular respiration. तो जिस प्रोसेस के दौरान भोजन पदार्थ ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज होती है उस रिस्पिरेशन को सेलुलर रिस्पिरेशन कहा जाता है. टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल. वन occurs in the presence of oxygen, while the other occurs in the absence of it. The process of breaking down of food in the presence of oxygen is known as aerobic respiration. यदि फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा हो
तो उस रिस्पिरेशन को एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। और इट टेक प्लेस in all the organisms and leads to the production of carbon dioxide, water and energy. Formula is glucose converted into carbon dioxide plus water plus energy in presence of oxygen. तो एरोबिक रिस्पिरेशन में इस तरह का प्रोसेस होता है कि फूड मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फूड इज ऑल्सो ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी फूड ब्रेक डाउन होता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एन एरोबिक रिस्पिरेशन। इस रिस्पिरेशन को एन एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है। इट अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ईस्ट में इस तरह का रिस्पिरेशन पाया जाता है। This process leads to the production of alcohol and carbon dioxide. In anaerobic respiration, the food material converted into alcohol or lactic acid, energy and carbon dioxide gas. In both type of respiration, carbon dioxide gas is evolved out. Amount of energy produced in aerobic respiration is more than that the energy produced by the anaerobic respiration. Now here one table is given. This table showing you the difference between the aerobic respiration and anaerobic respiration. It occurs, first difference is it occurs, aerobic respiration occurs in the presence of oxygen and anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Next, it involves the exchange of gases between an organism and outside the environment. And in anaerobic respiration, exchange of gases is absent. किसी तरह का गैस एक्सचेंज नहीं होता है, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ी जाती है। तीसरा डिफरेंस है इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है एरोबिक रिस्पिरेशन, एंड इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही कैरी आउट होती है। इट ऑलवेज रिलीज CO2 एंड वाटर। इसमें हमेशा वाटर और CO2 गैस रिलीज होती है। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में जो है एंड प्रोडक्ट है वो अलग अलग होते रहता है, मतलब डिफरेंट बदलते रहता है। द एंड प्रोडक्ट्स में वेरी। इट यील्ड 36 ATP मॉलिक्यूल्स। ATP molecules is the energy molecule, and in aerobic respiration 36 molecule, one molecule of glucose give the 36 molecule of ATP। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से 36 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होती है, जबकि एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ही प्रोड्यूस हो पाता है। एग्जाम्पल सेल्स इन आवर बॉडी, हमारे सेल में और जितने भी बड़े एनिमल्स होते हैं उनके सेल में भी एरोबिक रिस्पिरेशन पाया जाता है, और मसल सेल और ईस्ट में और कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इस तरह का रिस्पिरेशन देखा जाता है। ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द यूनिवर्सल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन ऑल लिविंग सेल। लिविंग सेल में बनने वाले एनर्जी की यूनिट होती है ATP। नाउ द नंबर ऑफ ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन इनहेल एंड एक्सेल और ब्रीथ्स इन 1 minute इज नोन एज द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट कैसे आप पता करोगे? एक मिनट में हम कितनी बार ऑक्सीजन लेते हैं या कितनी बार छोड़ते हैं,
उस संख्या को ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। Parts of human respiratory system. The human respiratory system has some different parts that are nasal cavity, nostrils, nasal cavity, pharynx, trachea, lungs and diaphragm. So these are the different parts of the human respiratory system. द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स का मतलब होता है नासा छिद्र, नाक के छिद्र। इट लीड्स टू द नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी में खुलती है। नेजल कैविटी नेजल चैम्बर में खुलती है। नेजल चैम्बर लीड्स टू द नेजल फेरिंग्स, वो नेजल फेरिंग्स में खुलती है। नेजल फेरिंग्स लीड टू द लैरिंग्स, ए लैरिंग्स मीन्स साउंड बॉक्स, उसमें खुलती है। एंड लैरिंग्स लीड्स टू द ट्रैकिया, लैरिंग्स ट्रैकिया में खुलती है। ट्रैकिया डिवाइड्स into many branches, that branches is known as the primary bronchi, and primary bronchi again divides, and that bronchi is known as the secondary bronchi. Secondary bronchi divide into tertiary bronchi, and tertiary bronchi divide into terminal bronchioles, and terminal bronchiole divide into many sac-like structure, and that sac-like structure is known as the alveoli. तो इस तरह से हमारे लंग्स की रचना होती है कि ट्राकिया जो आप देख रहे हो डायग्राम में, वो लंग्स के अंदर ट्राकिया डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है? ट्राकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। प्रत्येक ब्रोंकी को ब्रोंकस कहते हैं, और वो प्रत्येक लंग्स के अंदर जाती है, और वो लंग्स के अंदर जाने के बाद वो सेकेंडरी टर्सरी में डिवाइड हो जाती है, और अंत में वो टर्मिनल ब्रोंकियल्स में डिवाइड हो जाती है, बहुत से ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और हर ब्रांचेस के एंड में एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। उस बलून जैसे स्ट्रक्चर को एल्वियोली कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स मीन्स हाउ ह्यूमन बींग ब्रीथ in oxygen and breathing out of carbon dioxide gas. Let we see. The process of breathing involves the taking in oxygen rich air and giving out carbon dioxide rich air. Breathing का मतलब होता है वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ी जाती है। This entire process occurs because of the action of various organs of the respiratory सिस्टम। ये इस तरह का प्रोसेस ऑटोमेटिक होते रहता है। ये इसलिए होते रहता है कि बाकी जो ऑर्गन्स है रिस्पिरेटरी सिस्टम के, वो इसमें हेल्प करते हैं। वी ऑल नो दैट वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, हम सभी जानते हैं कि हम अपने नाक के छिद्र के द्वारा हवा अंदर लेते हैं। एंड व्हेन वी ब्रीथ इन, एयर पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल से होते हुए हवा नेजल कैविटी तक पहुंचती है। एयर देन रीचेस द लंग्स, उसके बाद में हवा लंग्स में पहुंचती है, विच आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में स्थित होते हैं। द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राम, और ये हवा हम अनायास ही अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ये होता है हमारे रिब केज के और डायफ्राम के मूवमेंट के द्वारा। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट बाहर की ओर फूल जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब हम हवा छोड़ते हैं तो चेस्ट अंदर की ओर चली जाती है, मतलब उसका साइज छोटा हो जाता है। तो हमारे रिब केज के मूवमेंट, मतलब रिब्स मूवमेंट और डायफ्राम के मूवमेंट्स के कारण हवा हम अंदर ले पाते हैं। तो जब हम हवा अंदर लेते हैं तो रिब बाहर की ओर मूव करती है और डायफ्राम नीचे की ओर मूव्स करती है। तो इससे चेस्ट कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है, उसमें प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए हवा, बाहरी हवा में ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा अंदर दाखिल होती है। और जब हम सांस जो होते हैं, मतलब जब रिब अंदर की ओर मूव करते हैं
और डायफ्राम भी अंदर की ओर मूव करती है चेस्ट की ओर, तब अंदर चेस्ट के अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है, वहाँ पर एयर का प्रेशर अधिक होता है बाहर की अपेक्षा, और हवा वहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मतलब बाहर की ओर मूव करती है। तो इन दिस वे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम वी can take in oxygen and we can expel out carbon dioxide gas from our body. So this process is explained by these two figures that I have explained earlier. During the inhalation, the diaphragm moves down and ribs move upwards and outwards, thereby increasing the shape in chest cavity. This leads to the movement of air inside the lungs during exhalation. Exhalation का मतलब है बाहर निकालना. The diaphragm moves to its former position and ribs move downwards and inwards. They reducing the size of the chest cavity. This leads to the movement of air out of the lungs. तो इस तरह से हम रिब्स और डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से हम अंदर ले पाते हैं और हवा बाहर छोड़ पाते हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन. So I hope you have understood this portion of the lesson. Till then, bye.